میرے بعد والدہ نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ رضا الہی سے سبھی 9 عمری میں فوت ہو گئے۔ ممتا کی ماری کو پے در پہ صدموں نے نڈھال کر دیا۔ اللہ سے دعا کرتی تھی، اے میرے رب اولاد دینا تو دراز عمر ہو، مزید صدمے سہنے کی تاب نہیں ہو۔ جب انسان اپنے خالق کے حضور خشوع و خضوع سے دعا کرتا ہے، عاجزی سے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو ضرور مالک دو جہاں مرادوں سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ والدہ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور عمر کے روپ میں اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کر دیا۔ میرے والدین کو برسوں بعد ایک بار پھر اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر دراز رکھا، کیونکہ دل ڈرا سہما رہتا تھا۔ قبل ازیں یکے بعد دیگرے 3 بچوں کی وفات کا صدمہ وہ جھیل چکے تھے۔ ان دنوں میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی اور بھائی مجھ سے 8 برس چھوٹا تھا۔ میں خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی۔ اللہ نے عمر کے روپ میں ایک خوبصورت کھلونا عطا کر دیا تھا۔ میں سارا دن دھیان اس کی طرف لگا کے رکھتی، اسکول سے آ کر اس کے ساتھ جی بہلاتی تھی۔ جب وہ سمجھدار ہوا، ابو نے کہا کہ بیٹے کو اسکول داخل کراتے ہیں، پر امی نہ مانی۔ ان کا کہنا تھا، میرا بچہ بھولا بھالا ہے، اسے ابھی اسکول نہیں بھیجوں گی، ایسا نہ ہو کہ کسی روز گھر سے نکلے اور کھو جائے۔ یہ امی کا وہم تھا، ان کا دل ڈرتا تھا۔ میں سیکنڈری میں تھی اور لڑکے لڑکیاں پرائمری تک اکٹھے پڑھتے تھے۔ اب میرا اسکول الگ ہو گیا تھا۔ تبھی والدہ نے سال بھر عمر کو پڑھنے نہ دیا۔ وہ خوفزدہ رہتی تھی۔ آخر کار سب کے کہنے سننے پر وہ راضی ہو گئیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ خود بیٹے کو اسکول چھوڑنے اور لینے جایا کریں گی۔ ان دنوں ملک کے حالات پرامن تھے۔ بچے اپنے طور پر اسکول چلے جاتے اور خود ہی واپس گھر آ جاتے تھے۔ کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ جس دن عمر پہلی بار اسکول گیا، میں ساتھ گئی تھی اور چھٹی تک ساتھ ہی رہی تھی، تاکہ اگر وہ روئے تو میں اسے واپس گھر لے آؤں۔ لیکن وہ نہیں رویا، بلکہ دوسرے بچے جو رو رہے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ آخر یہ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ کافی سمجھدار تھا۔ چھٹی ہونے تک سکون اور خوشی خوشی کلاس میں بیٹھا رہا اور کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار تک نہ کیا۔ دیکھنے میں وہ بھولا بھالا سا لگتا تھا، لیکن بے حد ذہین تھا۔ پہلی کلاس میں فرسٹ آیا، اگلی جماعت میں بھی اول نمبر تھا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا تھا، کھیلوں میں انعامات لیتا۔ سبھی کہتے تھے کہ اسے نظر نہ لگ جائے، کچھ کر کے دکھائے گا۔ جن دنوں وہ 9ویں کلاس میں تھا، ایک ایسا سانحہ ہوا کہ وہ نہ رہا۔ ایک روز اوپر سے جھانک رہا تھا کہ چھت کی منڈیر نیچے آ پڑی۔ وہ بھی اینٹوں کے ساتھ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سر پر شدید چوٹ آئی اور اسے ہسپتال لے گئے۔ 2 دن بعد ہوش آیا، کئی روز ہسپتال میں رہا۔ جب ٹھیک ہو کر گھر آیا تو یادداشت کمزور ہو چکی تھی اور کام کرنے کی پہلے جیسی صلاحیت نہ رہی تھی۔ 1 سال تک اسکول نہ جا سکا۔ وہ ہونہار طالب علم نہ رہا تھا، پوزیشن بھی نہ لے سکتا۔ اسے اب پہلے جیسی پذیرائی بھی نہ ملتی تھی۔ 1 سال ضائع ہونے کی وجہ سے اپنے ہم جماعتوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب انہوں نے میٹرک پاس کیا تو عمر 9ویں کلاس میں تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی کم مائیگی کا احساس سا ہونے لگا۔ جب لوگ نظر انداز کرتے ہیں، انسان میں احساس کمتری جنم لے لیتی ہے، جبکہ اساتذہ اس سے پہلے جیسی اعلیٰ عمدہ کارکردگی کی توقعات رکھتے تھے۔ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، جس سے اس کی قوت کارکردگی نصف سے بھی کم رہ گئی تھی۔ لوگوں کے ایسے رویوں سے عمر پر منفی رد عمل ہوا۔ وہ شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا۔ میٹرک میں 2 مضامین میں رہ گیا، تب امی ابو سے ناگوار قسم کی باتیں سننا پڑیں۔ وہ کہتے، تم نکمے ہو گئے ہو، پہلے کی طرح پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ دن رات والدین کی ایسی باتوں سے وہ پسپسا ہوتا چلا گیا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو منتشر ہونے سے بچایا اور میرے بار بار ہمت دلانے پر اس نے دوبارہ میٹرک کا امتحان دیا۔ بدقسمتی سے اس کے اچھے نمبر نہ آ سکے، بمشکل پاس ہوا۔ اس کے بعد تو جیسے وہ خود فراموشی کے گہرے کنویں میں گر گیا۔ ایک دن کچھ رشتہ دار ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے عمر کے بارے میں سوال کیا۔ والد صاحب غصے میں تھے، کہنے لگے کہ اس نے 2 سال لگا کر بھی کچھ نہ کیا۔ عمر نکما اور نالائق ہے، اب کسی اچھی جگہ داخلہ نہیں لے سکتا، نمبر ہی اتنے کم آئے ہیں۔ والد صاحب کی باتوں سے عمر کے دل کو ٹھیس لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بے بسی کو میرے سوا کسی نے بھی محسوس نہ کیا۔
बल्कि वालिद की बातों ने और जलती पर तेल का काम किया। कहने लगी, हाँ पास तो हो गया है, मगर मर मर कर पास हुआ है। लगता है उसका आगे पढ़ने का इरादा नहीं है। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उमर के दिल पर हाथ पड़ा। उसे माँ से हरगिज ये तवक्को न थी, क्योंकि वो जानती थी कि सर पर चोट लगने से वो पहले जैसा नहीं रहा है। वो अपने कमरे में मुसहरी पर जाकर लेट गया। जब मैं गई तो मेरा भाई चुपके चुपके घुट घुट कर रो रहा था। मैंने उसे गले लगाया, तसल्ली दी और ढारस बंधाई। उस रोज़ मैंने तहैया कर लिया कि अब अपने भाई का ख़ास ख्याल रखूंगी और पढ़ाई में मदद दूंगी। मैं उस पर तवज्जो देने लगी, रोज़ उसको पढ़ाती। उमर को एक ओस दर्जे के कॉलेज में सिफारिश पर बड़ी मुश्किल से दाखिला मिला था। फारिग वक्त में उसके पास बैठकर अच्छी अच्छी बातें किया करती, ताकि उसके जहन को सुकून मिले और एहसास कमतरी की दलदल में ना धंसता जाए। मेरी इस कावश से उसे वाकई सुकून मिला। फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर आए। एक रोज़ जबकि मेरी सहेली रुबीना बीमार थी, मैंने उमर से कहा, मुझे उसके घर ले चलो। वो अपनी मोटरसाइकिल पर मुझे रुबीना के घर ले गया। मैंने कहा, भाई अंदर आ जाओ, तो कहने लगा, नहीं अपनी मोटरसाइकिल पर ही खड़ा हूँगा, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से इयादत करके आ जाएं। जब भाई मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा था, उसका एक दोस्त नज़र आ गया। निसार का घर करीब ही था। फिर वो दोस्त के इसरार पर उसके घर चला गया और मोटरसाइकिल को गली में छोड़ दिया। दोस्त से ये ना कहा कि उसे घर के अंदर खड़ी कर लो। ये अजनबी मोहल्ला था। कुछ देर निसार के पास बैठकर जब वापस इस जगह आया जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की थी, तो वो वहाँ ना थी। कोई उसे ले उड़ा था। उमर के भी होश उड़ गए। उसने रुबीना के दर पर दस्तक दी। बहुत घबराया हुआ था। मैंने पूछा, भाई खैर तो है? बाजी खैर नहीं है, कोई हमारी मोटरसाइकिल ले गया है। भाई ये कैसे हुआ? तुम कहाँ थे? मैं निसार के घर चला गया था अपनी सवारी को छोड़कर, जबकि मैंने तुमको ताकीद की थी कि मोटरसाइकिल को अंदर ले आओ और उसको बाहर छोड़कर कहीं मत जाना। उमर बहुत परेशान था, कोई जवाब ना बन पड़ा। बस बाजी बात ध्यान से उतर गई और निसार से बातों में लग गया था। भूल ही गया, क्या पता था कि कोई मोटरसाइकिल गायब कर देगा। हम अब घर कैसे जाएंगे? इस सवाल पर वो गुमसुम था। हम रिक्शे में घर आ गए। अब्बू अभी तक नहीं आए थे। उमर रात से पहले अपने कमरे में दुबक गया, सुबह तक बाहर ना निकला, जबकि वालिद साहब देर से आए और खाना खाकर सो गए। वालिद साहब की नज़र सहन में इस जगह पर गई जहां मोटरसाइकिल खड़ी करते थे। अतवार का दिन था। उमर को कॉलेज से छुट्टी थी। उन्होंने पूछा कि इतने सवेरे साहबजादे कहाँ गए हैं? अम्मी बोली, कहीं नहीं, वो तो अपने कमरे में सो रहा है। उमर के कमरे में आई। वो जाग रहा था, आंखें सूजी हुई थी, जैसे तमाम शब ना सो सका हो। माँ को बताया कि मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। तुमने कल क्यों नहीं बताया? और अब अपने अब्बू को क्या कहोगे? बात छुपने वाली ना थी, अब्बू को बताना ही पड़ा। पहली बार उन्होंने लाडले पर हाथ उठाया था। उसे मारने लगे। मार तो भाई को पड़ रही थी, लेकिन चोट मेरे बदन पर लग रही थी। बस ना चलता था कैसे जाकर उनका हाथ पकड़ लूं। बेशक उमर की गलती थी, मगर मसला तो उसकी याददाश्त का था। वालिद साहब ने यह सब ना सोचा। मोटरसाइकिल के गायब होने पर उसकी खूब खबर ली, बुरा भला कहा। अहानत आमेज जुमलों ने मेरे भाई के दिल पर बहुत गहरे घाव डाले। अब्बू गरज रहे थे कि तुम एक नाकारा और नाकामयाब इंसान हो, लापरवाह हो। क्या इस कदर भी कोई लापरवाह हो सकता है? अब तुम उम्र भर नाकाम ही रहोगे। मार खाकर वो अपने कमरे में जाकर छुप गया। देर तक रोता रहा। रात को मैं उसके पास गई और गमगुसारी करने लगी तो सिसकने लगा कि बाजी, क्या वाकई मैं नाकारा इंसान हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैंने उसको समझाया, उमर तुम ऐसे ना थे, सर में चोट लगने से तुम्हारी याददाश्त मुतासिर हुई है, तवज्जो करो तो ठीक हो जाओगे। बाजी, अब्बू अम्मी मुझसे अब प्यार नहीं करते। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह खुप गए हैं। वो कह रहे थे, काश ये पैदा ना होता। क्या मैं बहुत बेकार हूँ? अम्मी भी बजाय दिलजोई करने के मोटरसाइकिल के खो जाने पर उमर को ऐसी ही उल्टी सीधी सुनाने लगी। जो दिल मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़ा था वो फिर से टूट गया। इंसान टूटे हुए बाजू से शायद ही कुछ कर लेता है, लेकिन टूटे हुए दिल से कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन इस बात को नहीं समझते थे। उन्होंने उमर के साथ अजीब सा रवैया अपना लिया, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया
और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने उसे रोका, समझाया कि मेरे भाई, घर एक नेमत होता है, उसको ठुकरा कर मत जाओ। तुम्हारे लिए इस घर में ही सब कुछ है। अगर यहाँ से चले जाओगे तो बाहर कुछ भी नहीं पाओगे। मुझे घर में मोहब्बत चाहिए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। अगर इस घर में मेरे लिए किसी के दिल में मोहब्बत नहीं है तो फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। उस रोज़ मैं बहुत रोई थी, उसके आगे हाथ जोड़े, तब वो ना गया। लेकिन अब वो सबसे लाताल्लुक और अलग थलग सा रहने लगा था। कॉलेज छोड़ देने पर वो घर में और भी ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियत हो गया। उसे घूमने फिरने का शौक़ ना था, फिर भी अब वो सुबह घर से निकलता तो रात गए घर आता था। खाना खाए बगैर अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता। मैं चुपके से उठती और खाना उसके कमरे में ले जाती, इसरार करके खिलाती थी। उमर कहता, मेरी प्यारी सी बहन, मैं जहाँ भी जाऊँगा तेरा प्यार मुझे याद रहेगा। एक तुम्हारी ही ज़ात है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। मुझे बहुत तशवीश रहती थी कि उमर सारा दिन कहाँ रहता है। एक दिन ये राज भी खुल गया। हमारे घर से कुछ दूर एक वीराना था। वहाँ जाकर एक घने बरगद के पेड़ तले बैठ जाता था, फिर दरख्तों भरे जंगल में मारा मारा फिरता रहता था। उसको बस इसी तरह सुकून मिलता था। एक दिन वो वीराने की तरफ जा रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी और वो बेइख्तियार उसके पीछे हो लिया। न जाने इस लड़की में कौन सी कशिश थी कि उसके पीछे वो चलता ही चला गया, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गई। घर आकर उमर ने बताया कि आज एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी थी। खुदा जाने उसकी दीद में कैसा असर था कि मैं उसके पीछे चल दिया। वो जहाँ जा रही थी मैं भी बेइख्तियार उसके ताक़ुब में चला जाता था। वो फिर किधर चली गई, मैंने पूछा। वो हैरान सा हो गया, बोला, बाजी, मैं हैरान हूँ कि वो फिर किधर चली गई। वो गुमसुम था कि वो लड़की कौन थी और कहाँ चली गई। मैंने कहा, मेरे भाई, तुम्हारी जहनी हालत दरहम बरहम है, तभी तुमको ऐसे ख्वाब दिन में दिखाई देने लगे हैं। ये तुम्हारा वहम है। जब इंसान परेशान होता है तो इस किस्म के हियोले तसव्वुर के पर्दे पर दिखाई देते हैं और हकीकत लगने लगते हैं। खुदारा अब इन वीरानों की खाक छानना छोड़ दो और ज़िंदगी का कोई मकसद अपनाओ, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी खुद फरेबों में ज़ाया करने की चीज़ नहीं है। उमर को मेरी बात समझ में ना आई और इस लड़की की खोज में आवारागर्दी करने का मामला मेरी समझ से बालातर था। अब मैं परेशान रहने लगी कि अगर ये इसका वहम नहीं है तो फिर वो लड़की कौन है और कौन सा ऐसा सहर है जिसने मेरे भाई को हवास बाख्ता कर दिया है। एक रोज़ सुबह निहार कॉल बेल बजी। उमर ने दरवाज़ा खोला। एक लड़की अपनी माँ के साथ आई थी। ये डर गया कि शायद शिकायत करने आई है। उसने जाकर कहा, माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, आइंदा तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। अम्मी से कुछ मत कहना वरना मेरी शामत आ जाएगी। ये दोनों माँ बेटी हैरान थी कि ये क्या कह रहा है। ताहम लड़की समझ गई, लेकिन वो चुप रही। उसकी माँ बोली, बेटी ये क्या बोल रहा है, हम तो मिलने आए हैं। मैंने उनको देखा तो अंदर बुलाया। भाई की सूरत अजीब सी बनी हुई थी कि पसीने से शराबूर था। हालत भांप कर उसे पकड़कर मैं कमरे में ले गई। तुमको किसी वहम ने घेर लिया है और हियोले नजर आने का दौरा पड़ा है। लड़की की अम्मी ने कहा, यह आपका बेटा है, सीधा सा है बल्कि बेवकूफ़ है। वालिद ने जवाब दिया। मैंने मामले को संभाला और पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं। लड़की की माँ बोली कि हमने आपके मोहल्ले में एक पुराना मकान ख़रीदा है, सोचा कि पड़ोस में मिलना जुलना चाहिए। हम यहाँ नए आए हैं। आपका बेटा ठीक तो है? हाँ ठीक है। दरअसल कुछ अर्से पहले ये छत से गिर गया था और सर पर चोट लगी थी, तभी से तसव्वुराती दुनिया में गुम हो जाता है। थोड़ी देर बैठकर वो चली गई तो उमर ने मुझसे कहा, पाजी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारा घर वीरान हो गया हो? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने मशकूक निगाहों से उसे देखकर सोचने लगी कि खुदा खैर करे। एक रोज़ फिर वो लड़की गुजरी। उमर गली के नुक्कड़ पर दिखाई दिया। ये लपक कर उसकी तरफ गया और रोक कर कहा, मेरी बात सुनो, मैं बुरा नहीं हूँ और मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। वो बोली, ठीक है, आप बेवकूफ़ नहीं हैं और आप अच्छे भी होंगे, मगर मैं क्या करूँ? मैं आपको कैसा लगता हूँ? थोड़े से पागल लगते हो। वो भी हंसी तो भाई भी हंस दिया। तब उसने कहा कि हमारे घर आना। मैं किसी लड़के को घर नहीं बुलाती, लेकिन सुन चुकी हूँ कि तुम्हारे दिमाग पर चोट लगी है, तभी तुमको दुख नहीं देना चाहती। वो समझ गई थी शायद कि इसके दिमाग में खलल है,
न जाने गुस्से में आकर कैसा रद्द अमल करे। वो पुरसकून रही ताकि ये खैरियत से चला जाए। उमर ने घर आकर अम्मी से कहा कि इन लोगों के घर जाएं जो आपसे मिलने आई थी। प्लीज़ अम्मी, मुझे वो लड़की पसंद है, आपने मेरी शादी उससे करानी है। मुझे अपने भाई की फिक्र होने लगी। मैंने अम्मी से कहा कि आप उनके घर ज़रूर जाएं और ताल्लुकात बढ़ाइए। आखिर भाई की शादी तो करनी है। हाँ, करनी तो है, लेकिन ये इस लड़की के लायक हो तभी रिश्ते की बात हो सकेगी। ये तो उसके लायक ही नहीं है। माँ की बात सुनकर भाई का रंग पीला पड़ गया और वो नाराज़ होकर घर से निकल गया। मैंने माँ से कहा, अम्मी अगर उन लोगों के घर नहीं जाना मत जाइए, लेकिन इस तरह तो उमर से नहीं कहना था, उसका दिल दुखाया है आपने। वो बोली, बेटी बात मैंने इसलिए कर दी कि वो आगे तंग ना करे, वरना साफ बात यही है कि वो लोग क्यों भला हमको रिश्ता देने लगे। उमर ना तो जहनी तौर पर ठीक है और ना पढ़ा लिखा है। उमर घर से निकला और सीधा इस मकान की तरफ गया जिस पर 40 बरस से ताला पड़ा था। ये एक हिंदू का मकान था जो कि तकसीम के वक्त इस घर से चले गए थे और अब इस घर का कोई वारिस ना था, क्योंकि मोहल्लेदार कहते थे कि वो लोग गए नहीं थे, उनको मारा गया था और अब तक उनका खून घर के अंदर पड़ा हुआ है। वल्लाह आलम, क्योंकि हम में से कभी किसी ने घर के अंदर ना देखा और ना ही कभी ताला खुला देखा था। जब भाई इस मकान पर पहुंचा तो मकान का ताला खुला हुआ था। वो अंदर चला गया। वहाँ मकान में कोई भी ना था। बरसों की गिर्द हर तरफ पड़ी हुई थी। किसी जीरू के रहने का इम्कान नजर ना आया, लेकिन वो लड़की वहाँ कमरे में पड़ी गिर्द आलूद मुसहरी पर बैठी थी। ये मुझे भाई ने बताया था। भाई को देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई, कमरे से बाहर निकल गई, बल्कि दरवाजे से बाहर चली गई। उमर इसके ताकुब में निकला, वो गली में गायब हो गई थी। उमर परेशान घर आया और मुझे बताया कि ऐसा हुआ है। मैंने कहा, मेरे भाई, मैंने नफ्सियात पढ़ी है, वहाँ कोई लड़की नहीं थी और ना तुम घर के अंदर दाखिल हो सकते हो, क्योंकि वहाँ अभी भी ताला पड़ा हुआ है। अब्बू ने बताया है कि इस घर को किसी ने नहीं खरीदा और ना ही उधर कोई लोग रहते हैं। तुमने जो कुछ देखा और महसूस किया वो सब तुम्हारा वहम है। फिर वो दोनों कौन थी जो हमारे घर आई थी कि वो किसी दूसरे मकान की बात कर रही होंगी? तुमने गलत समझा है। मोहल्ले में एक और भी पुराना मकान है जो काफ़ी बरसों से खाली पड़ा है और अब बिक गया है। वो उधर से आई होंगी। मैंने उमर की तसल्ली करानी चाहिए। बाजी, बेवकूफ़ ज़रूर हूँ मगर इतना भी नहीं। वो ये कहकर कमरे से चला गया। मैं भाई के पीछे गई कि उसे रोकूं ताकि खाना खाने न जाने किधर निकल जाएगा। दरवाजे से झांका तो वो गली पार करके उसी वीराने की सिमत जा रहा था, तेज तेज जैसे किसी का ताकुब कर रहा हो। वो कह रहा था, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो, इस कदर तेज मत चलो, मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा कि उसको फिर से उसके वहम ने सताया है और दिमागी खलल की वजह से उसे अपने तसव्वुरात का वही हेयोला दिखाई देने लगा है जो उसको हकीकत से फरार की तरफ ले जा रहा है। मैं चाहती थी कि उसके पीछे जाऊं और अपने भाई को दूर जाने से रोकूं, मगर वो जैसे मेरे इस ख्याल को भांप गया था और किसी गैर मरई ताकत की बिना पर जान गया हो और तेज तेज भागने लगा और फिर जंगल की सिमत दौड़ता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। अगले दिन वो ना लौटा। अम्मी अब्बू को फिक्र हुई। मैंने बताया कि वो इसी वीराने की तरफ भागा था जिधर उसे एक बार वो लड़की नजर आई थी और वो उसके ताकुब में चल पड़ा था। वालदा कुछ लोगों को हमरा लेकर इस तरफ गई और सारा वीराना और जंगल छान मारा, पर भाई का कोई सुराग न मिल सका। वो मायूस होकर वापस लौट रहे थे कि एक जगह कीचड़ में उनको उमर के जूते मिल गए, जो इस बात का सबूत थे कि वो इधर आया था, लेकिन वहाँ कदमों के निशान नहीं थे। किसी की समझ में ना आया कि वो किधर गया, तो उसके नक्श पा किधर गए। वो दिन और आज का दिन हम अपने भाई को ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। उमर का कहीं पता नहीं चल सका। अलबत्ता इस तरफ आगे एक तंदो तेज नाला बहता है और गांव वालों का ये ख्याल है कि वो अपने दिमागी खलल की वजह से तसव्वुराती सायों का ताकुब करते हुए शायद नाले में गिर गया हो और फिर पानी के तुंद रेले उसे बहाते हुए कहीं से कहीं ले गए होंगे। पुराने मकान का अलबत्ता मामा हल ना हो सका, क्योंकि उस पर ताला ही पड़ा रहा और उधर कोई आबाद नहीं हो सका। जो ख्वातीन हमसे मिलने एक बार आई थी वो भी दोबारा कभी ना आई, ना ही उनका कोई ठिकाना मिल सका। हमने भी उनको ख्वाब समझकर भुला दिया कि न जाने कौन मुसाफिर थीं, कहाँ से आई थीं,
کہ ٹھنڈا پانی پینے کو ہمارے گھر چلی آئیں۔ ہم نے ہر بات بھلا دی مگر اپنے پیارے بھائی عمر کو نہ بھلا سکے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔